Awesome, guys. So, Team Nindya will be live soon with us. And in the meanwhile, do let us know through comments if we are visible, if I'm audible, how's the video coming. Let's have some comments. Hey Amruta, hey Rohit. And in the meanwhile, let me have all three of them. Bidipta, Anurag, and Badisha will be live soon. So, guys, if you're there, do send me a request and let me see if I can add you right away. Let me just send out a request to all of you. So it starts with Anurag. All right. So seems somehow Anurag, I'm not able to find you. Can you send me a request right away on this live so that I can add you? Guys, meanwhile, do tell us how excited are you. The group also known as Bidu Lovers. I can see the excitement because we received a lot of questions. इतने सारे questions थे हमारे पास इस live session के लिए for Bidipta, Bidisha and Anurag that we had to really combine all of them just to understand कौन से questions पूछे जा सकते हैं आज. So let me just see if I have the request. So Bidipta and Badisha, we're waiting for you. And Anurag, if you are online, do send me a request so that I can add you guys. Guys, and meanwhile, हमें comments के through बताइए how excited are you? Use emojis to express. Let's just have a little game going. जब तक हमारे team Nindya joins us. So let's just hear it. Let's just see some comments rolling. Do show your emojis. Do send us some emojis to show your excitement for this live today. All right, seems I can now add. Quickly find Anurag as well. Anurag, seems like I'm not able to still find you. If you are there, send me a request and I'll quickly add you. Bidipta, meanwhile, I've invited you to join the live session. So as soon as you accept the live request, we'll be rocking this session. I can see all of Bidipta's fan pages joining in. Bidipta Trending, Bidipta Idol. You guys have thrown in so much of love. इतना सारा प्यार दिया है आपने Bidipta को during the Indian Idol season and of course outside that Indian Idol season as well. Of course to the entire Nindya team as well. So it's amazing. Hi, Bidipta. Hi, Vidisha. How are you guys? You are not audible actually. I'm not audible? Yeah. Say something. Am I audible now? Yeah. Absolutely. All right. How are you guys? Fine, absolutely. आप कैसे हैं? All good. I was just waiting. I'm just waiting for Anurag's invite. I'm not able to find him somehow. So if you're able to find him, can you quickly add Anurag as well so that we start this session? Let me check. So Anurag, if you're online, you can send us a request and I can simply add you. Okay. Meanwhile, I'm seeing a lot of requests from your fans, Bidipta, Badisha. I cannot tell you guys, इतनी सारी requests, इतने सारे messages आए हमारे पास जब से हमने ये announcement किया है. People are like, if I tell you, लोग उस हद तक भी गए हैं. They've contacted me over WhatsApp. They've called me, यार आप कब live आ रहे हो?
and you know stuff like that. So इतने सारे messages हमारे पास हमारे इस छोटे से session के लिए कि we had to literally I had to ask my team कि यार give me some constructive questions to ask इस session के लिए because ये session बहुत बड़ा नहीं है. So right, this is gonna be exciting. This is Namaste. Hi, namaste सबको, namaste. Hi. अनुराग कहाँ पे है? I can see over 100 requests to join this live right now. बस मुझे अनुराग की request नहीं दिख रही है कहीं पे भी, and I'm not able to even find him and add him. पता नहीं क्यों. हेलो, थैंक यू सभी को ज्वाइन करने के लिए. बने रहिए यहाँ पे, हम लोग नींदिया के बारे में बहुत कुछ बताने वाले हैं, एक्साइटिंग, मसालेदार. तो यार I guess let me just quickly call Anurag and see if he's available. Meanwhile, हम थोड़ा सा comments को run through करते हैं and I'll just see if Anurag's available. Guys, I'll be back in a minute. Love from Bangladesh as always. Wow. Thank you. Bengali बोलो. কেমন আছো? সবাই কেমন আছো? বেঙ্গলি বললে তো একই বাত আছে. সবাই কেমন আছো? How are you? Fine. How are you? Hi सभी हाय भेज रहे हैं. थोड़ा बने रहिए, थोड़ा अनुराग दा का कुछ इशू हो रहा है तो वो ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं. बने रहिए. Hi Shrestha, hi, love from Maharashtra. Thank you so much. Thank you. Love from Jharkhand. Thank you. From Jharkhand. Hi Devi, hi. So sorry guys. It's okay. I hope You're saying something. तो मैं बोल रही थी कि ऑडियंस को कि आफ्टर लॉन्ग टाइम हम लोग साथ में आए लाइव में, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था हम लोग दोनों साथ में नहीं आए थे. I can see that there is a lot of craze right now, Bidisha and Bidipta. इतने सारे comments आ रहे हैं हमारे पास इस टाइम पे. I cannot tell you the question section जो होता है ना Instagram का, that's like loaded right now. Hi, love from UP, love from Bihar. Thank you so much. Love from Bangladesh. Amazing. Okay, so Anurag is here and I've just accepted his request. Hopefully he's gonna be here soon, very soon. And he's here. Hello. Hi. Hey Anurag, how are you? Not that great, but I'm trying to be fine. Guys, I know Anurag की थोड़ी सी तबीयत खराब है because we had this conversation earlier today. So yeah, but thank you so much guys for joining us today and making this happen. Of course, there are a lot of fans, a lot of fan pages have requested a lot of things from us. So we might gonna, have one of the fans as well included in this live session. We'll tell you who it is. It's gonna be a surprise for you guys as well. So of course that's gonna happen, but there is a lot of things that gonna happen right now as we meet Team Nindia guys. So of course let's get this started. First of all, हमें ना थोड़ा comments के through बताओ, how excited are you to see this Team Nindia right now? And have you heard the song? Have you created reels? If yes, do tag all of us and let us know how the song was and everything. So let's just start the excitement. Bidipta, it's gonna start from you, of course. You're the one who's sung this song so beautifully. So tell us about the experience and tell us about the backstory of Nindia. निंदिया का बैक स्टोरी बोले तो जब ये गाना रिलीज हुआ उससे 3-4 महीने पहले मैंने अनुराग दास से बोला था कि दादा आप लिरिक्स देते हो तो मुझे एक लिरिक्स भेजोगे. मैंने ऐसा बोला था कि ऐसा ऐसा चाहिए. फिर उन्होंने दिया. फिर उसके 3-4 महीने बाद मैं घर पे नहीं थी. आई एम लाइक मैं यूएसए में थी. तो तब मुझे दीदी ने कॉल करके बोला कि सुनना मैंने एक म्यूजिक दिया तो जो लिरिक्स भेजा था. तो मैंने बोला हाँ सुनाओ. फिर मैंने सुना कि अरे यार क्या दिया ये.
फिर उसके बाद लाइक वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट एंड फिर मैंने दादा को भेजा कि देखिए, दादा बोला कि अरे तुम लोग काम करो इसको लेके। मैंने सोचा कि मैं बस ऐसे ही मांगा कि मतलब वो उतना नहीं करेंगे, ऐसा सोचा था। तो हम लोग उसके बाद मतलब एकदम निंजा का जो स्टोरी एकदम अनएक्सपेक्टेड था। मतलब हम लोग करेंगे अभी म्यूजिक देंगे अभी वीडियो करेंगे, ऐसा कुछ प्री प्लान नहीं था एकदम, है ना? हाँ राइट। और मैंने जब सुर मेरे मैं एक दिन अचानक मैं बस हमिंग कर रही थी एक धुन, हाँ पता है। तो ये निंदिया का जो सुर देना है ये मैंने प्रिपेयर नहीं थी मैं बिल्कुल भी, मतलब देना है अभी बैठे हैं निंदिया का सुर देना है ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो अचानक एक मेरे मन में एक धुन आया, तो मैंने सोचा कि इसको यार ये लिरिक्स पे बैठा देते कि अच्छा क्या कैसा लगता है ये। तो फिर जो आउटकम आया तो वो तो अब सब अभी देख ही सकते हैं। तो ऐसे ही Amazing. Absolutely, विदिशा। जो जो आउटपुट है, जो आज हम सुन रहे हैं निंदिया को अक्रॉस गाइस, निंदिया हर जगह अवेलेबल है, बीट एनी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, गाना, स्पॉटिफाई, यूट्यूब, एनी अदर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यू कैन नेम, इट्स अवेलेबल। सो जरूर सुनिए एंड हमें अभी इसी टाइम बताइए कमेंट्स के थ्रू कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस आफ्टर लिसनिंग निंदिया, बिकॉज ऑनेस्टली मेरा अपना एक्सपीरियंस ऐसा था कि the lyrics touched my heart, and of course because the composition and it's beautifully sung by Bidipta, of course, जो lyrics थे ना, एक एक word is like really touching. So Anurag, the next question is possibly for you only, कि ये जो lyrics थे इसके पीछे का कोई कहानी है? Does it relate to any of the stories from your career so far, या कैसे आया? How does this lyrics fall into picture? Okay, so when Vidipta asked me for the lyrics, पहले उन्होंने मुझे कुछ अलग ब्रीफ दिया था, ठीक है, कि she wants a romantic, soft romantic kind of a lyrics, and उसके बाद अभी सॉफ्ट रोमांटिक में मेरा क्या होता है, क्योंकि आई एम नॉट अ प्रोफेशनल लिरिसिस्ट, मतलब मैं दिस इज समथिंग दैट आई डू बिकॉज आई लव इट, दिस इज नॉट समथिंग दैट आई डू रेगुलरली, लेकिन बिकॉज शी नोज दैट आई डू दैट, और उसके साथ मैंने एक दो काम इससे पहले किया हुआ है, और नहीं एक्चुअली एक काम ही किया हुआ था, और जब हम लोग एक साथ एक रियलिटी शो में थे तब उसको पता था कि मैं ये सब कॉम्पोजिशन या फिर लिरिक्स करता हूँ, ये सब काम करता हूँ। तो जब व्हेन आई वाज थिंकिंग कि मैं क्या लिखूं सॉफ्ट रोमांटिक में, सो आई थॉट दैट अभी बहुत सारे गाने ना सॉफ्ट रोमांटिक है अभी, और रोमांटिक जो एंगल है उसमें मेरा एक ऐसा भी प्रॉब्लम, अभी नया नया प्रॉब्लम आ रहा है। प्रॉब्लम ये है कि मुझे ना, मतलब क्योंकि रोमांस क्या होता है बेसिकली, लड़का लड़की मिले, सॉफ्ट रोमांटिक अगर हम करें, अगर उसमें उसमें से अगर हम मतलब गम दुख ये सब अगर हटा रहे, तो लड़का लड़की मिले, लड़के को क्या लग रहा है, लड़की को क्या लग रहा है, यही है। अब इसको आप कितने मेटाफोरिकली या फिर ऐसे आप दिखा सकते हो, अभी उतना मेटाफर मेरे दिमाग में आ नहीं रहा था, टू बी रियली ऑनेस्ट, क्योंकि जितने मेटाफर अभी मेरे दिमाग में है वो सब मैंने यूज कर दिया है। तो फिर मैंने बहुत पहले ये गाना लिखा हुआ था एक, मैंने जब इसको भेजा विदिप्ता को तो शी लाइक्ड इट, और ये कैसे आया मेरे दिमाग में, एक पहली बात तो मैं पहले जब मतलब जब जिस टाइम का बात मैंने किया कि हम लोग एक रियलिटी शो में थे एक साथ, उस टाइम पे आई वाज अ वेरी आई वाज नॉट दिस, आई वाज अ होल डिफरेंट पर्सन, आई वाज अ वेरी क्लीन शेवन गुड गाय, स्मॉल We have हेयर, seen those. हाँ, एंड आई वाज आई एट ऑन टाइम, आई स्लेप्ट ऑन टाइम। और उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने काम करना शुरू किया प्रोफेशनली, तो मैंने दाढ़ी बढ़ा ली, मैंने बाल बढ़ा लिया, और मैं मतलब खाना गलत टाइम पे, सोना गलत टाइम पे, ये सब शुरू शुरू हो गया था। तो एक्चुअली दिस स्टार्टेड, द लिरिक्स स्टार्टेड विद एन इंस्पिरेशन ऑफ कि मैं रात को क्या कर रहा हूँ मैं ऐसे, क्योंकि जब काम रहता है तो तब ठीक है, लेकिन जब काम नहीं रहता है कभी कभी तो नींद भी नहीं आ रही है, और मतलब इंस्टाग्राम एक दो घंटे के बाद कितना ही स्क्रॉल कर लेंगे, तो वो तब एक मतलब एक वक्त पे बहुत ज्यादा ब्लैंक लग रहा था, और ऐसा भी लग रहा था, और जब आप ब्लैंक होते हो तो बहुत सारे ना गलत थॉट्स आते हैं, नॉर्मली अच्छे थॉट्स बहुत कम आते हैं जब आप ब्लैंक होते हो, तो गलत थॉट्स ज्यादा आते हैं। तो आई वाज थिंकिंग कि मतलब इफ इंडिया और स्लीप वाज अ पर्सन, हाउ वुड आई कॉल हिम और हर। तो ऐसे ही मैंने वो लिखा था, और जब मैंने भेजा विदिप्ता को, देन शी लाइक्ड इट एंड इट वाज इट वर्कड आउट रियली वेल। और आई मतलब मुझे, मैं जब करता हूँ कुछ कॉम्पोजिशन या फिर मैं जब कुछ लिखता हूँ,
तो मैं एक धुन अगर ना भी हो तो मैं एक स्कैनिंग सोच के लिखता हूँ, ठीक है, कि मैं मतलब ये गाना अगर कोई गाएगा तो ऐसी ऐसी तरह से गाएगा, या फिर मैं अगर कभी इसको ट्यून करूंगा तो ऐसी तरह से करूंगा। लेकिन जब विदिशा दी ने इसको ट्यून दिया, सुर दिया, तो द स्कैनिंग वाज कम्प्लीटली डिफरेंट एंड एट द सेम टाइम इट वाज सो ब्यूटीफुल दैट आई वाज रियली अमेज्ड कि यार मैंने एक स्कैनिंग पे लिखा था, स्कैनिंग पूरा चेंज करके भी इट साउंडिंग सो नाइस। सो कूडोज टू बोथ द सिस्टर्स। मतलब उसको वो जो घर में रहता है ना, वहाँ पे टैलेंट मतलब ऐसे कभी कभी छत से छलांग मारता है। Uh, Vidipta, Vidisha, you're not audible. I guess आप लोग कुछ बोल रहे थे बीच में, but you're not audible right now. We are audible right now. Yeah, Hello. right now you're audible. Now you're audible. I guess आप कुछ बोल रहे थे बीच में. हाँ, मैं बोल रही थी, जब दादा ने बोला कि मैं बिट्टू को लिरिक्स भेज, तो मैंने उनसे पूछा कि भैया मैं तो एक लड़की होके गाऊंगी, तो ये क्यों जगाती है मुझको रातों में, मतलब मैं एक लड़की को जगाती क्यों बोलूंगी। तो तब उन्होंने मुझे बोला यू आर सेइंग दिस टू लाइक स्लीप, लाइक नींद को, मतलब वैसा मुझे मतलब पूरा समझा है कि गाने का मतलब थीम क्या है, जो अंदर का जो वो थीम क्या है। फिर मैं समझी कि अच्छा ऐसा ऐसा है। वही Of course, you know, kudos to the entire team. Anurag, आप kudos to the sisters बोल रहे थे. I'll say kudos to the entire team actually. Yeah. Specifically, you know, Bidisha, who, you know, added the life to the song. You know, of course, music director का काम होता है life डालना, जान डालना उस गाने में. So Bidisha did that work. So Bidisha, the next question is of course for you. All we wanted to know is कि, you know, during the composition of the song, how did you decide कि, you know, जैसे अनुराग अभी बता रहे थे कि, you know, it changed from one scale to the another scale and then, you know, things changed, but जो आउटपुट आया वो जो आउटपुट था जो हम आज सुन रहे हैं of course on all the platforms, वो मैजिकल है, वो इतना प्यारा लगता है कि आप वो कभी भी सुन सकते हो। तो you know, उसके पीछे की एक जो स्टोरी थी ना, क्या इंस्ट्रूमेंट्स आने चाहिए, क्या टोन आना चाहिए, हाउ डिड यू नो कम टू द कंक्लूजन कि यार हाँ ये ठीक है, अब मजा आ रहा है। हाँ, तो सुर देने के बाद ये जो आप बोल रहे कि इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात, ये हम दोनों ने साथ मिलकर किया है, ये मेरा कुछ अपना नहीं था, ये हम दोनों ने डिसाइड करके किया है। और ये जब मैं मतलब ये जब मैंने सुर दिया पूरा जब रेडी था, तब मैं भी सोच रही थी, अचानक से मतलब वो जो अंतरा में जो पार्ट है अचानक से अलग अलग एक स्केल पे चला जा रहा है। तो मतलब इन्होंने पूछा मैं कि खुद भी सोच रही थी कि ये हाँ, सही है क्या, क्या कि पूछा विदिता कि ये अच्छा लग रहा है, बोलो ना, बोलो अरे यार मस्त लग रहा है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, मेरा खुद का ही सुर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मैं सोच रही थी कि ये पागल जैसा कुछ नहीं जाएगा, ये कैसे सुर बना दिया मैंने। फिर विदिता ने बोली कि नहीं, ये बिल्कुल मास्टर क्लास है, ये बिल्कुल जाएगा, एकदम अलग है, अलग हटका एक सुर है। तो ऐसा एक आ गया मेरे मन में, तो कुछ सोच के नहीं बना ये, वही ना। सोच के करते हैं तो कभी कभी वर्कआउट करता ही नहीं, जो मतलब नेचुरली आता है वही कभी कभी बहुत अच्छा होता ही नहीं कभी, मतलब ऐसा होता है कि मैं अभी बैठूंगी, अभी सुर दूंगी, मैं अभी लिरिक्स में लिखूंगी, तो अभी होता ही नहीं है। हाँ वही सेम ऐसा, मतलब मैं अभी एक गाना रिकॉर्ड करूंगी, अभी बैठती हूँ, मेरा वैसा कभी कभी मतलब ज्यादातर टाइम होता ही नहीं। मतलब मैं सडनली जाती हूँ, मैं माइक पे बैठती हूँ, गा देती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं प्री प्लान सुबह से मैं गला अच्छा रखती हूँ, शाम को गाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं होता, सच्ची है ना। एंड ऑफ कोर्स आप दोनों गाते हैं, हमने पुरानी वीडियोस और अभी कुछ लेटेस्ट वीडियोस भी देखी हैं विदिशा विदिप्ता की, जहाँ पे यू गाइज आर सिंगिंग। सो ऑफ कोर्स वो एक स्टेज होगा जहाँ पे हम आप दोनों से यू नो रिक्वेस्ट करेंगे फॉर अ सॉन्ग, बट फॉर नाउ आई वुड लीव द स्टेज टू द सिंगर ऑफ द सॉन्ग विदिप्ता, एंड ऑफ कोर्स हैव यू नो फ्यू लाइंस, हम पूरा गाना गाने को नहीं कहेंगे, बट फ्यू लाइंस फॉर ईच वन ऑफ अस राइट नाउ। ठीक है, तुम आप कुछ बोल। हाँ, मैं बस एक बात ऑडियंस से पूछना चाहती हूँ कि मतलब निंदिया कैसा लगा आपको, प्लीज मुझे कमेंट में भेजिए, इधर बताइए कैसा लगा निंदिया। वैसे भी तो YouTube पे फ्लड मतलब पूरा फ्लोडेड हो गया है। हाँ Comments से फ्लोडेड तो है, इतना लेकिन प्यारा मैं प्यारा इधर comments। लाइव देखना चाहती हूँ कि लोगों को कितना पसंद आया निंदिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा लोगों के कमेंट पढ़ के। विदिशा एज यू सेड, मैंने ना आपके लिए कमेंट पिंग किया है अभी। The Chakraborty sisters will rule the world one day। अरे वाह, माय गॉड, सो स्वीट ऑफ यू। मैं सेनापति बन जाऊंगा। में ना बहुत कमेंट्स आया है
इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, एवरीवेयर, लाइक लिरिक्स कितना अच्छा है, म्यूजिक कितना है, उसके बाद विदिता आपने कितना अच्छा गाया, मतलब ना अच्छा हाँ लगता था, मतलब तीनों को, मतलब तीनों चीजों का ही एकदम इक्वलिटी करके जो वो हो रहा है, मतलब क्या बोलते हैं, अप्रिसिएशन जो लोग कर रहे हैं, तो Right. थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, इट्स मीन्स अ लॉट। एंड थैंक्स टू अनुराग दा एज वेल, उन्होंने इतना प्यारा लिरिक्स दिया, एकदम सुइटेबल फॉर मी। तो बहुत ही अच्छा। It's एक्चुअली हम ना जब beautiful. वी हैव नोन ईच अदर सिंस अभी कितने साल हो गए, 3 साल हो गए, 2020, हाँ तो 3 साल 4 साल होने को है। तो 4 साल कब हो गए एनीवेज, तो 4 साल होने को। बट व्हेन वी एक्चुअली मेट ईच अदर, तब हमारा जो मतलब हम जो दोस्त लोग जब थे, तो हम विदिता को ना मतलब बंगाली में मिष्टी में कह के बुलाते थे। मिष्टी में मीन्स इट्स द स्वीटेस्ट गर्ल इन द होल ग्रुप। Yeah. तो मिष्टी में के लिए मिष्टी गाना बहुत ज्यादा जरूरी था, तो एक स्वीट लिरिक्स बहुत बहुत जरूरी था। बट मैं एक बात बोलूंगी, सिर्फ लिरिक्स ने, अनुराग दा ने मुझे ये गाना रिकॉर्ड करने में भी हेल्प किया है, क्योंकि मैं ये गाना मेरे मतलब मैंने जो होम सेटअप बनाया उससे मैं रिकॉर्ड किया, तो ये होम सेटअप मैंने कैसे बनाया, कैसे सीखा, वो सब दादा से सीखा। मुझे बिल्कुल भी एक भी चीज मुझे पता नहीं था, मैं बिल्कुल एकदम लेम थी इस बारे में। तो पूरा दादा मेरे घर पे आए, उतने उनका घर बहुत दूर है मेरे घर से, तो वो मेरे घर पे आए मुझे सिखाने के लिए, फिर मैं ये गाना गाई, तो ये भी क्रेडिट उनको जाता है। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। Of course, it's at the end of the day, it's a team effort. Yeah, एग्जैक्ट। So guys, hats off to each one of you who was involved. Of course, हम पूरी टीम को नहीं ला सकते थे आज इंस्टा लाइव पे, but yes, this is gonna be rocking, and let's just hear the song now. Yeah. Everyone is waiting. क्यों जगाती है मुझको रातों में, है कहा नींदिया, याद पुरानी सताते हैं मुझको, तू है कहा नींदिया, तन्हा हूँ सोई कितना मैं रोई, आना जरा नींदिया, सब कुछ भुलाए फिर भी ना आई, थोड़ी सी चैन नींदिया, क्यों जगाती है मुझको रातों में, है कहाँ नींदिया। थैंक यू। Wow. Awesome, Vidipta. मतलब it's magical to hear you live. It's next. विदिता आई थिंक हैज, मैंने ये उससे पहले कहा भी है, विदिता हैज वन ऑफ द नॉट जस्ट sweetest but one of the most cinema friendly or playback friendly voices I've ever heard, and the most melodious voice. I second that. थैंक यू। Of course. So, Anurag, बहुत सारे comments आ रहे हैं हमारे, on the composition, on the lyrics. People are loving this song, by the way, guys. I know आप सारे comments नहीं पढ़ पा रहे हो. So, while Vidipta was singing, मैं वो काम कर रहा था. So, I can see magical voice. The says Anvesha. I've pinned one comment from Manisha, जो कि कह रहे हैं कि Nindya is so beautiful composition, soulful, feels like heaven. मतलब these are actually my words as well. Yeah. Amazing. One thing that I was saying, that when I wrote the lyrics, I had a different scanning in my mind. तो क्या होता है जब आप कोई गाना, समझो कि आप एक रिसेंटली अभी अनुव जैन का कोई गाना सुन रहे हो, ठीक है, और वो सुनते सुनते उस लिरिक्स को आप उठा के फिर आप एक जगजीत सिंह जैसे कुछ गाते हैं वैसे एक कॉम्पोजिशन पे आप बिठा दो, तो एक बार में ना क्लिक नहीं करेगा वो. सो व्हेन आई रोट दिस सॉन्ग, द स्कैनिंग वाज मोर लाइक एन इंडी काइंड ऑफ थिंग, ठीक है. तो मैंने वही मतलब दिमाग में रख के मैंने वो बनाया था गाना. And then now when I heard the song before the release, definitely, तब मैंने देखा कि it was a lot like एक गजल का एक फ्लेवर था,
एक प्योर बॉलीवुड का एक फ्लेवर था, और जिस तरीके से इंस्ट्रूमेंट्स यूज हुए, और जिन्होंने अरेंज किया है गाना, सुमन दा, राइट? शुमांदा। हाँ, बहुत ब्यूटीफुल अरेंज किया है उन्होंने। और आई थिंक कुछ लाइव इंस्ट्रूमेंट्स भी टेक हुए हैं, तो एक मतलब एक थॉट से बनाया हुआ कुछ दूसरे थॉट में गया, वो भी इतना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो दिस एक्चुअली प्रूव्स दैट आर्ट कैन नॉट बी डिफाइंड प्रॉपरली कभी भी। Exactly. मैं कुछ सोच के कुछ बनाऊंगा, और किसी और का सोच अगर उसके साथ मर्ज हो जाए, तो वो कुछ और ही बन जाता है, और वो इतना खूबसूरत बन जाता है। मैंने कभी मतलब एक्चुअली मैंने कभी सोचा नहीं था कि दिस लिरिक्स वुड साउंड गुड इन अ गजल काइंड ऑफ कॉम्पोजिशन, Yeah. and it did. So it's so beautiful. It is. It indeed is. And हमारे पास बहुत सारे ऐसे questions हैं अनुराग, विदिशा, विदिप्ता कि when is the next song coming? ये जो next ये जोड़ी, ये इनफैक्ट जोड़ी नहीं, ये तिगड़ी अगर हम बोले, ये तिगड़ी हमें next कब दिखेगी और कितनी जल्दी दिखेगी, and what is coming next? जस्ट टू इन्फॉर्म यू गाइस, मैंने अनुराग दा से ऑलरेडी और एक लिरिक्स मांगा है, तो स्टे ट्यून्ड। Awesome. Awesome. So और we हमारा ऐसा might होता है कि मतलब कोई ऐसा हम प्लान करके करेंगे। एक तो प्लान भी हुआ है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अचानक से एक दिन मूड हुआ कि मैं कुछ लिख दूं, फिर मैंने उसको भेज दिया, विदिशा दी ने कॉम्पोजिशन कर दिया। ऐसे भी एक हफ्ते के अंदर एक गाना आ जाए, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। Amazing, amazing, guys. आप जो भी बनाएंगे, we know that's gonna be a sure short hit. That's for sure. Because ये गाना भी सुन के, there are a lot of comments जो हम आज पढ़ रहे थे, on the video, on Instagram as well, that people are saying कि, I guess ये विदिप्ता का पहला हिंदी ओरिजिनल है, right? राइट। Right. So people were, really asking on the comments कि यार, why don't you do more Hindi songs, more Hindi originals? Indian Idol में सबने आपको देखा है इतने प्यारे प्यारे गाने गाते हुए, विदिप्ता, and now people are literally waiting for you to have more original songs covered. So I guess that's a message for all of you, all three of you right now on live कि people are hungry, हमें और चाहिए, including me. हमको उनके गाना लाना मतलब हमको भी बहुत अच्छा लगता है जब हम लाते हैं उनके लिए गाना, और क्योंकि इतने अच्छे रिस्पॉन्स आते हैं ना हर एक एवरी सिंगल टाइम, तो और एक लाइक इन्फ्यू आता है कि अरे हम और भी करते हैं काम, चलो साथ में, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। Amazing, amazing. So there was one question that I wanted to ask each one of the fans who are live with us right now. Of course, वो मैंने भी पूछा था विदिप्ता से. The question is, guys, can you guess निंदिया की वीडियो कहाँ रिकॉर्ड हुई है? हाँ, ये मुझे भी पता नहीं एक्चुअली। So we'll reveal the answer, Anurag, but let's just let Where is it? people comment. It's a place called Heaven. बोलो बोलो। That's what the description says. इतना ब्यूटीफुल है कि मतलब स्वान्स है, फिर ऐसे स्मोक्स जा रहे हैं, Right. और कभी कभी क्या होता है, ये सब क्रिएट करते हुए ना कभी कभी मतलब थोड़ा सा घोटाला हो जाता है कि लाइट ठीक नहीं है तो कुछ और लग रहा है देखने में, लेकिन इट्स एक्चुअली लुकिंग सो गुड। कितना मतलब अलग ही लेवल का हुआ है घोटाला। Okay. बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं. पीपल आर सेइंग लुधियाना में, कोई कह रहा है विदिप्ता के घर पे. मेरे घर पे। किसी ने अभी कमेंट किया इट्स इन हेवन, या as Anurag was saying. That's Anurag's comment. You cannot just steal my comment like that. Shooted in बरेली heaven, किसने कहा है? Bareilly, See? Mumbai. So I guess without taking much time, I guess we can have the answer now. Vidipta, can you tell all of us ये गाना कहाँ shoot हुआ है? I think someone said Hyderabad, yeah, वहीं पे हुआ है। They did. Let हाँ, me ये just find them. थोड़ा सा outskirt आउटस्कर्ट था, ये है विकाराबाद, अनंतगिरी हिल्स, उधर हुआ है ये शूट। Yes, the right answer is Hyderabad, and I've pinned that user as well, Vidipta2408. Fan page. A big shout out to Vidipta2408 who guessed it right. Right. Oh.
Awesome, guys. So, we planned this live, Chotu sa, but it had a lot of song requests. Of course, this was largely Nindya, but हम आप लोगों को ऐसे नहीं जाने देंगे. Of course, we have song requests for all of you. So we might start with Anurag. I know Anurag, थोड़ा सा गला, you're not sick, you're sick right now. I'm very sick right now. But shall we give it a try or let's not? Let's give it a try. मतलब try तो करना ही पड़ेगा अभी. देखते. Let's hit it. So, the song request was Satranga. I guess a lot of people, gave so much of love to this song, the cover you did. So Yeah. let's have Satranga by Anurag, guys. Okay. Let's try. Thank you. Anurag, गाना सुन के तो नहीं लग रहा था आपकी तबीयत खराब है, but चलो ठीक है, we'll buy that. Thank you. Amazing. Guys, I'll have just a couple of questions read out. Some of them are, really good. So, इसमें से एक question is for Bidipta. Bidipta, this is one of your international fans. Her name is Shehzadi. So, she reached out to us on all possible sources. And her question is pretty genuine. All she wants to know is she wants to meet you, and she's asking if you have any plans to move to Mumbai anytime soon. या आप कोलकाता का भी, your hometown, if you're planning to leave and shift to Mumbai, ये question है उनका. मुंबई पे शिफ्ट होना फिलहाल तो अभी नहीं है, क्योंकि मेरा स्टडी अभी चल रहा है कोलकाता पे, तो आई हैव टू फिनिश दैट ओनली, एंड आफ्टर दैट मैं शिफ्ट कर सकती हूँ. बट मुंबई पे मेरा आना जाना चलता है, जैसे कि मैं कल ही जा रही हूँ मुंबई पे. तो ऐसा आना जाना होता है, बट शिफ्टिंग का प्लान अभी तो नहीं है, सॉरी. बट मैं जाती जाती रहती हूँ. तब मिल सकता है. Awesome. Shehzadi, I guess you've got your answer. The next request that I have, Bidipta, Anurag and Bidisha, I'm just gonna, read some of the questions. ये question मुझे बहुत मजेदार लगा. This is by Akshay Mohan, and he's asking क्या चावल खाने से आवाज खराब होती है? नहीं, आप बताओ. हम तो बंगाली लोग हैं, हम लोग तो चावल तो बहुत खाते हैं हम लोग. हाँ, ऐसा कभी सुना है मैंने, बड़े लोग बोलते हैं कि रात को जब मतलब विंटर होता है, तो विंटर में हाँ, रात को चावल वो खाने सही से थोड़ा भारी हो हाँ, जाता वो है. सही है. रात को ऐसे भी चावल avoid किसी ही का करते होता हैं. भी नहीं है, बट ऐसा कुछ नहीं है. यू कैन ईट चावल. So people say sometimes that you cannot have ice cream before you sing. Right. ठीक है, सिंगर्स को आइसक्रीम खाना भी नहीं चाहिए, लेकिन एक किताब में लिखा हुआ है और लता जी के खुद के इंटरव्यू में भी कहा हुआ है कि वो रिकॉर्डिंग से पहले कभी-कभी आइसक्रीम खाया करते थे. Exactly, I So also correct. watched it. everything is very different for each other. मतलब मेरे लिए जो खराब है वो उसके लिए अच्छा हो सकता है, उनके लिए जो खराब है वो मेरे लिए खराब हो सकता है. हाँ, कैसा? Of course. Then the next question, Anurag, that's for you. Ritam has asked, Ritam1320 is asking, so guys, ये थोड़ा बंगाली में है question, so please pardon अगर मैं कुछ गलत बोलूँ, and please correct us as well. So the question is, मैं English में भी पूछ सकता हूँ question, but let me just try the Bengali version first. Okay. So Anurag, Indian Idol को भी जाचो. This is a very difficult question. अच्छा. जानी ना कोई. Actually, see, I'll be very honest. Reality show is a very fulfilling journey. Okay, आप reality show में जब जाते हो तो you have to give your 100% to that, at least for those 4-5 months or 6-7 months. Have to be Uh, mentally and physically. जब आप जाते yeah, हो. exactly. Because हमने भी जब एक साथ एक reality show हमने किया था, तब भी it was very hectic. Though it was because it was a Bengali reality show, मतलब हमारा यहाँ पे Bengali food. हाँ. घर फीलिंग आता था वहाँ पे. हाँ, थोड़ा सा घर फीलिंग आता था, बहुत कम ही आता था, लेकिन थोड़ा सा आता था. Now if I मतलब ऐसा नहीं, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि मैं चाहूंगा तो ऐसे ही चला जाऊंगा, ऐसा नहीं है. Correct. मतलब there are definitely so many auditions, but अभी मेरा मन भी नहीं है इस वक्त, क्योंकि
आई एम टू मच कमिटेड टू द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ माय म्यूजिक वर्क्स, जो अभी मैं कॉम्पोजिशंस कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, या फिर मेरा जो इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स जो आ रहे हैं, एंड देन आई एम डूइंग a few other works on some films, some BGM work, some vocal design works. तो मतलब अगर मैं अभी वहां पे जाऊंगा, अगर मैं अभी इंडियन आइडल हो या फिर कोई भी ऐसा रियलिटी शो में अगर मुझे अभी जाना है, तो मुझे मेरा पूरा जो कंसंट्रेशन है वो पूरा उस पे डालना पड़ेगा. तो इट्स गोना बी रियली हेक्टिक फॉर मी. और मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन थोड़ा सा यहाँ पे रह जाए, थोड़ा सा वहाँ पे रह जाए, मैं पूरा एफर्ट कहीं पे भी ना दे पाऊँ. तो अगर कभी ऐसा हुआ कि आई डिसाइड टू गिव माई 100% एफर्ट टू दैट एस्पेक्ट ऑफ my musical life, then definitely I'll try my best to participate. Awesome, awesome. The next and the last question for Bidisha. Bidisha, कुछ लोग ये जानना चाह रहे हैं कि you've done this composition for Biditta, this team Nindya. Do you have any plans to move to different artists and different genres as well? I'll try maybe. हम कोशिश तो जरूर करेंगे. You can do it. हाँ, कोशिश तो Yeah, I would करेंगे. like a song for myself. हाँ हाँ. मुझे भी एक गाना चाहिए ऐसे. अरे आप खुद ही इतना अच्छा. हाँ, अनुराग दा कंपोज भी करते हैं, बहुत बहुत अच्छा कंपोज करते हैं. Wow. मतलब खुद के लिए कंपोज करके अभी ऐसे मजा नहीं आता है मुझे. मतलब I हाँ, need सही. a very I need a very good composer to compose for me, and right now I cannot see anybody else than Bidisha Di right now in front of me. Thank you, thank you. कोशिश तो ऐसा अभी कोई प्लान नहीं है, क्योंकि मेरा प्रोफेशन थोड़ा अलग है. तो जब टाइम मिलता है, मेरा ये मतलब सिंगिंग मेरा प्रोफेशन तो नहीं बना, लेकिन ये मेरा पैशन है. सिंगिंग मुझे बहुत अच्छा लगता है, और फिर सुर भी मैं म्यूजिक डायरेक्ट भी कर लेती हूँ थोड़ा बहुत. तो वही, अब कोशिश तो जरूर करेंगे आगे बढ़ने का इसी चीज को लेकर. थोड़ा बहुत नहीं Bidisha, we can tell you've done magic with this song, and you've added the life to this song. So I cannot say it thoda bahut. This was something out of the league. This was magic. Thank you. And the last thing, guys, of course, मैं that special person को live लूंगा. Shrestha is her name, I guess. Yes, Shrestha is her name. So she's gonna be live with us. She is a diehard fan of Biditta, and she has asked us to be on this live for just a minute. All she wants to do is ask Biditta that question. So Bidisha, Shrestha, if you're live right now, do send me a request. And in the meanwhile, Bidisha and Biditta, we have just one song request. If that's possible, if you can, if you guys can sing Ghungaru Toot Gaye. That was one of the videos that we were seeing couple of days back. And I guess कोई fun story भी है. Biditta काफी तेज हंसी. नहीं, मैं सोची कि उसका ब्लूपर कितना मस्त था. नहीं, हम लोग कोई गाना शूट करने बैठते हैं ना, तो वो 100-200 टेक के बाद ही होता है. बहुत बहुत कुछ के बीच में बहुत ये घर घर की कहानी है. हाँ, Exactly. ये घर घर की कहानी है. हाँ. ठीक है, हम गाते हैं. Awesome. And in the meanwhile, add करूंगा. ठीक है, चलो. कुछ दूसरा गाना गा सकते हैं क्या? Of course. नहीं, चलो ना. ठीक है, तो हम साथ में गाते थे. 1 2 3. क्यों लम्हे खराब करे, गलती बेहिसाब करे, दो पल की जो नींद उड़ी, पूरे सारे ख्वाब करे. क्या करने उम्रों वादे, ये जो रहते रहने दे आधे. 2 बार नहीं, 1 बार सही, एक रात की कर ले तू यारी. सुबह तक मांग मेरी बात, तू से जोर से नाची आज के घुंघरू टूट गए, के घुंघरू टूट गए. छोड़ के सारे शर्म और लाज,
मैं ऐसे जोर से नाची आज के घुंघरू टूट गए, के घुंघरू टूट गए. Thank you. Amazing. Awesome, awesome guys. This was beautiful. मतलब मजा आ गया. डांस करने का मन कर रहा था. Amazing. So I'm just trying to add Shrestha on this live. I guess कुछ problem हो रहा है. In case we're not able to do it, we'll just take one more question and probably end for the day. So let me just see if I can add her. In case not, so Shrestha, if you're online, I've just invited you. Just try joining in if you are able to. Otherwise, you can ask your question through the comments, and we'll make sure your idol Vidita answers that question. I guess there is some problem because of which she's not able to join. Shrestha, that's okay. You can, send us your question, and we'll try to cover that up in this live session only. All right. I think she's having some issues or what? Correct. Let's not wait. I'll definitely pass on the question to Vidita directly if that's not possible. हाँ, उसका message आ गया, Shrestha का message आ गया. She's not able to join. That's okay, Shrestha. That's absolutely okay. We'll try. We'll obviously be having a lot of sessions with this team. Of course, आज team Nindia था. Next time this is gonna be something else, but the team might stay the same. So, of course, there will be a lot of live sessions with Readers Fusion. Thank you so much, guys. Thank you, Vidisha, Vidipta, and Anurag for joining us on this live session today. We Thank you so thoroughly much for having us. It was actually, I was recently I was also, looking at your page, the Readers Fusion's page, and I saw so many interviews over there, and I really, really liked the way you guys coordinate your Instagram, because I just saw your Instagram page. Yeah. And it's really beautiful, and it's really very professional. It looks very professional. So thank you very much for having me and us over here, and it's an honor. So thank you so much. Thank you, Anurag. It's because of you guys, you artists from the industry who make that page lively and happening. So thanks to you guys, and we're gonna of course meet you separately, Vidisha, Vidipta, and Anurag. We might wanna catch up with you individually as well. Yeah. So expect that message coming soon from the team. Of course, Sure. love to do that. Awesome. Thank you so much, guys, for making this live more happening, and we'll stay in touch. Thank